Good morning, children. Welcome in your maths class. Let's start a new chapter. Simple equation. A simple, that means a linear equation. An equation is a condition on any variable. What does this variable means? Which can vary. Okay. That means all A, B, C, D to Z. It's called variable. There's condition. So these conditions are the two expression must have equal value. That means the expression which we take, they have the must value, equal value. At least one of the two expression must contain the variable. मतलब दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक वैल्यू के अंदर वेरिएबल होना चाहिए. बिना वेरिएबल के सिंपल इक्वेशन इनकम्प्लीट है. ओके, सो लेट्स सी हियर. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड. इन दोनों इक्वेशन में पहला कंडीशन है टू एक्सप्रेशन मस्ट हैव इक्वल वैल्यू. जो दोनों की दोनों है वो बीच में कौन सी साइन होगी? इक्वल की. अगर ये लेस देन या इक्वल टू ग्रेटर देन हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. ओके, सो कंडीशन इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए और दोनों के दोनों एक्सप्रेशन में किसी एक में वेरिएबल होना चाहिए. यहाँ पे वेरिएबल किस में है? एक्स. ओके, सो लेट्स मूव वन सेकेंड टॉपिक. Forming of expression and statement. That means how we form the expressions by given statements and how we form a statement by given expression. So we know what is variable. A to Z is called variable and constant that means 0, 1, 2 and so on is called constant. There is some trick. When more than is written, we have to add the number. If added is written, then also we have to add. Similarly, if less than and subtracted is given, so we have to subtract it. And if times given, that means we have to multiply it. If quotient and divided is given, that means we have to divide. Okay, by the help of this we may write easily the expression given. So see the question number 1. Write the following statement in the form of equation. There is a statement given and we have to write it in the form of equation. 2 more than x. More than, that means add. So x plus 2. It becomes x plus 2. Similarly, 10 times a is 70. Times, that means multiply. Okay. So 10 times a, that is 10 into 10 times into a is, that means is equal to, it's give you 70. So you write like this. Again, 6 times y. 6 times, that means multiply y, it's give you 6y. Next, 1/4 of x. 1/4, that means 1/4 of, again of means multiply. So you write here times and of. Of means multiply, so it's also, it's give you x by 4. So this is the statement and we make it into equation form. Next question. The following equation is given and we have to write in the statement form. 3m upon 5 is equal to 6. That means 3, यहाँ पे सिंबल कौन सा है? मल्टीप्लाई का. 3 times m divided by 5 it's give 6. तो यही लिख देंगे हम. Again see the second one. 4p minus 2 is equal to 80. That means 2 from है ना, from लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि 4p में से माइनस कर रहे हैं, इसलिए 2 को पहले लिखेंगे. 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स, बिकॉज 4 और p के बीच में मल्टीप्लाई है. 4 टाइम्स ऑफ p टू गेट 18. ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर और सिंपल इक्वेशन. कैसे लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं? दे आर 3 मेथड: ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड. सो फर्स्ट वी मूव फ्रॉम ट्रायल एंड एरर मेथड. इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट वैल्यू आर सब्स्टिट्यूटेड इन द वेरिएबल अंटिल द लेफ्ट हैंड साइड बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स जो भी इक्वेशन में वेरिएबल दिया होगा एक्स वाई जेड ए बी सी वॉट एवर, वहाँ पर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0 और माइनस वॉट एवर इट इज़. हाँ, अब तब तक पुट करेंगे जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो जाए. जस्ट सी, वी टेक एन एग्जाम्पल. 5p plus 2 is equal to 17. After that, make a table like this. Write the left hand side value here
and the value of p, because what is variable here? P. Value of p and value of left hand side after putting the value of p, it's become like this. ये तब तक वैल्यू पुट करेंगे जब तक हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ना हो जाए. तो अगर हम p की जगह 0 ले रहे हैं तो यहाँ पुट करेंगे 0 p की जगह, तो हमें 2 मिलेगा. क्या 2 17 के बराबर है? नो. सो मूव 1 सेकेंड एट p 1. p की जगह 1 लेंगे, सॉल्व करेंगे 7. क्या 7 17 के बराबर है? नहीं. फिर p की जगह हम 2 लेंगे और फिर 2 पुट करेंगे. क्या ये 17 के बराबर है? अगेन नहीं. फिर नेक्स्ट वैल्यू कुछ लेते हैं, 3 लेते हैं. अब यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो क्या ये 17 के बराबर है? येस. ये दोनों 17 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया. तो p की किस वैल्यू पे ये इक्वल हुए हैं वही हमारा आंसर होगा. तो p इज इक्वल टू 3 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, ये डेफिनेशन है. डिफरेंस वैल्यू पुट करेंगे, हमने पुट किया वेरिएबल में p की जगह जब तक लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो गया. नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को 5p + 2 को हम दूसरे मेथड से देखते हैं, सिस्टमैटिक मेथड. इसमें क्या होता है? सेम नंबर अगर ऐड करेंगे तो दोनों साइड ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो भी दोनों साइड करेंगे. जब तक करेंगे तब तक हमारा सॉल्यूशन ना मिल जाए. और करना क्या होता है? हमें वेरिएबल को अकेले इस साइड छोड़ना होता है. ओके, तो वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे जो नंबर्स हैं हमें उन्हें हटाना है. तो पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है बिकॉज वेरिएबल तो अभी यहाँ पर है. उससे पहले जो नंबर है उन्हें हमें वहाँ से हटाना है. तो यहाँ पे 2 है, 2 के साथ कौन सी साइन है? प्लस. तो प्लस का हम उल्टा लेंगे, जस्ट उल्टा. तो प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस. तो माइनस सेम नंबर लेंगे, जिस नंबर से हम ऑपरेट करें वही नंबर. तो -2 यहाँ भी होगा और -2 यहाँ भी लेंगे बिकॉज सेम नंबर एडेड ऑन बोथ साइड और सब्ट्रैक्टेड. सो सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे. -2 17 -2 इट्स बिकम 15 एंड 2 and -2 become cancel. So what we left here? 5p is equal to 15. After that, अब 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड. तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, बट किससे? p अकेले बचे, इसके लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से, बिकॉज 5 हटेगा तभी p अकेले बचेगा. तो 5 से डिवाइड करेंगे. जब 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 5 से यहाँ कैंसिल हो गया और ये 5 3 आया. तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 3. ट्रायल एंड एरर मेथड से किया था तब भी p इज इक्वल टू 3. सिस्टमैटिक मेथड से किए थे तो भी p इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन मेथड. इसमें क्या करना होता है? ट्रांसपोज मतलब भेजना होता है एक साइड से दूसरे साइड इक्वेशन के, और उसकी साइन चेंज करके. अगर प्लस वाले को भेज रहे हैं तो इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले को भेज रहे हैं इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाले को भेज रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाला हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो लेट्स सी द सेम इक्वेशन फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड. 5p + 2 = 17. हमें हमेशा इक्वेशन की जब वैल्यू निकालनी होती है तो इस साइड हमें वेरिएबल को अकेले छोड़ना होता है, किसी भी साइड. तो ये लेफ्ट साइड में तो हम लेफ्ट साइड में ही सोच लेते हैं कि इसको अकेले p को हमें अकेले करना है. तो अब 2 है, 2 को इधर भेजेंगे, प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस. तो 17 - 2 इट्स बिकम 15. 5 और p के बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई. जब इस साइड आएगा राइट साइड तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? डिवाइड. 15/5 इज इक्वल टू 3. सो व्हाट वी गेट? p इज इक्वल टू 3. p इज इक्वल टू 3 हमें ट्रांसपोजिशन में भी मिला, सिस्टमैटिक में भी मिला और ट्रायल एंड एरर मेथड में भी मिला. तो सो ईज़िली हम ट्रांसपोजिशन मेथड को नॉर्मली अडॉप्ट करते बिकॉज ये ज़्यादा ईजी है. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.